So the Bihar election done and dusted, 200 plus mandate for the NDA, and the parleys have kicked off over who will be the Chief Minister. Kaun banega CM of Bihar? BJP leaders, as we speak, are now at Nitish's residence. The likes of Union Minister Lalan Singh, of Samrat Chaudhary, who is the Deputy Chief Minister, are currently at Nitish Kumar's residence. They are meeting with him. Is this merely a congratulatory meet, or is there more that's being discussed, perhaps, on what should be done as far as who will be the Chief Minister is concerned? The JDU constantly maintaining that, look, there's no debate or discussion around this. Nitish Kumar is very much going to be the Chief Minister. But the BJP is singing a different tune, saying that everyone will come together, discuss and decide on who will be the Chief Minister of Bihar. Considering that number there of the BJP at 95 being the single largest party and having outdone the JDU within the alliance, they will realize that they are in a power position to go ahead and push for their own leader to also be the Chief Minister. But who will that leader be? There's a big question mark on that as well. Piyush Mishra is joining us with more details on this. So Piyush, the hectic huddles, parleys have kicked off. No differences per se. You know, you don't hear completely contrasting views or anything that will break up the alliance per se. In all likelihood, this will all be handled very peacefully. But there will no doubt be an attempt by the BJP to say, look, we're the single largest party here. We need our pound of flesh. But there's no doubt, Akshita, that the BJP would want to instill its chief minister in the state of Bihar because it has got the largest number of seats in its kitty. But on the other side, various leaders are now saying that they're going to follow the Gathbandhan government. That's why Nitish Kumar will become chief minister. But right now, I'm showing you the pictures from the BJP headquarters, and as you know how BJP has performed in the state of Bihar, and after that, there's a lot of excitement among the workers of BJP. And here I can see a worker whose hand is fractured, and still he is now here dancing, celebrating. आपके हाथ पे चोट लगी है, डांस कर रहे हैं आप, आपको दर्द नहीं हो रहा है? पहला तो बधाई नरेंद्र मोदी को। हाथ टूटा है, एक हाथ में भी बल है। हम लोग अति पिछड़ा के बेटा हैं, अति पिछड़ा के बेटा हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है, इसलिए जंगल राज मिटाए हैं। इसी हाथ से बल देंगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, दोनों हाथ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। सबसे पहले बताना चाहेंगे, एक सेकंड सर, बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार हैं, तो केंद्र में बैठा हमारा लौह पुरुष आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। आपके मन में इच्छा होती है कि आपका मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री? देखिए, कोई बात नहीं है, सबसे बड़ा चीज है बिहार में विकास होना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे एनडीए के समर्थक डिसीजन लेंगे, हम उसके साथ हैं। क्या कारण रहा कि बीजेपी को इतना ज्यादा सीट आया? जनता को बीच में हम लोग किए हैं, महिलाओं के बीच में किए, युवाओं के बीच में किए, बुजुर्गों के बीच में किए। हम जब से कल चुनाव खत्म होगा, हम लोग रोड पर उतर जाएंगे काम करने के लिए जनता से। बीजेपी कार्यकर्ता सर, ये महिलाओं का मान सम्मान का जीत है, ये बिहार की जनता का जीत है, ये युवा का जीत है, ये संस्कार की जीत है, ये बिहार की क्या बोलते हैं, इज्जत अस्मिता की जीत है। अपना एक जो हम लोग का आता है ऊपर से योजना, हम लोग घर घर जाकर उस योजना का लाभ देते हैं, सबसे बड़ी जीत है। जीविका दीदी का मजाक उड़ाया गया था तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा। हमारे इस जीत में सबसे बड़ा योगदान हमारी आधी आबादी का है, महिलाओं का, काम करते हैं। सबसे बड़ा चीज हम बताना चाहेंगे कि आप मुझे क्या कारण जीत का, तो जीत का सबसे बड़ा कारण है युवा, जीत का सबसे बड़ा कारण महिलाएं। क्यों? क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि 2005 तेजस्वी यादव तो आपको हर घर में सरकारी नौकरी दे रहे थे, उनको वोट? सरकारी नौकरी देते कहाँ से, हमने घर से देते। पहले मेरी बात सुनिए कि आज 2005 से पहले हमारे घर की बेटियां पढ़ती नहीं थी, लोग कहते थे कि बेटियां पढ़ लिख के चूल्हा फूकेंगी, लेकिन हमारे the BJP workers right now very animated, very enthusiastic, understandably so. This is their day. But Piyush, thanks for that live report. I'm going to keep coming across to you. While this mandate is huge, it's a landslide win, 200 plus for the NDA in Bihar. You've heard so many predictions. None of them spoke of 200 plus for the NDA in Bihar. But
in the run-up to this election. During the campaign, you had Prime Minister Modi, Home Minister Amit Shah repeatedly indicating that what you're going to be seeing is a historic number for the NDA. They kept referring to the historic turnout and said that this will mean advantage NDA. So I want to play out for you exactly what the Prime Minister and Home Minister Amit Shah had said when they had predicted what the Bihar numbers are going to look like. एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। छोटी पार्टियों का सर जो जातीय समीकरण है वो बहुत हावी रहता है। तो दो सवाल है। एक तो मुकेश सहनी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि देखिए यादव और जो मल्ला समाज के लोग हैं वो पारंपरिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे, तो उनका भी कहना था कि मुश्किल है वोट को कन्वर्ट करना एक दूसरे की तरफ। ये जो छोटी छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या चिराग पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव नीतीश बाबू के साथ, ये सब वोट ट्रांसफर होगा ऐसे? देखिए, पासवान जी तो लड़े थे, चिराग जी पहली बार लड़े हैं, और ये छोटे दल और छोटी पार्टियों का राजनीति भी बिहार के लिए कोई नया नहीं है। इस सब होने के बावजूद हम 20 साल से लगातार चुनकर आ रहे हैं और अगले 5 साल के लिए भी चुनकर आ जाएंगे। पीके पर सर मैंने पिछली बार एक सवाल पूछा था, प्रशांत किशोर पर एक सवाल, आप इतना घूम कर आए हैं, आपको लगा कि वो एक फैक्टर बन सकते हैं कई जगहों पर? देखिए, चुनाव में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। इस देश में 1550 पार्टियां थी, एक और नई बनी है जन सुराज पार्टियां, और 151 पार्टियों में से 22 पार्टियां इस राज्य में चुनाव लड़ रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 160 सीट एनडीए की पार्टियों को मिलेगा, बाकी जो बच जाता है 160 से ज्यादा में मिलेगा।